शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पावम् संध्यादीपनमोऽस्तुते संध्यादीपनमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम्. That if you are into some crime number, if you come in contact with this drugs, when you are into the crime activity, you are a criminal then. Then you won't have a job because your job verification will be done. So it has seriously further implications. So try to not to come into such activities. If somebody is going into it, try to stop it. The ways I told, you can call, you can tell your teachers, you can tell your principal. I think they have a suggestion box in the college. Please do for suggestion box, sir. Suggestion box. If you can write anonymously in your college that such things are happening. So I feel like, and your college has kept so much activities. When your principal briefed me, he told about so many activities. Get involved in this. Rather than scrolling your phones, I don't say phones are good or bad. It is an information for you. Phones are necessary. It is an information base. But try to get away from the mobiles. Check the hours you are away from your phones. Then only your concentration, you can have more concentration. When phones are necessary, you have to use the phone. But I ask you all, how many hours you are without the phones? As a student, you should be able to control yourself, like how many hours you are away from the phone. What activity do you do? Do you do drawing? Do you do gardening? Do you speak to your parents? Do you speak to your friends? So whatever you do with your hands, like only scrolling is not important. Please stay away with your phone. I know phones are important. My generation had books. You don't touch books sometimes, but I know medical students have to touch their books. You can't study everything in your mobiles. Our generation, we used to smell the books. That kind of a passion we had for books. But now we too have come to mobile. But mobiles are necessary. Don't get abused anywhere. Physically, not even in the phone also. Cyber crimes have become more now. So cyber bullying happens. So stay away from loan apps, dating apps. You will be compromised. If you are compromised, if somebody is threatening you all, please call 112 for that also. Don't hide things. I have seen they just hide things and they get extortion happens. Don't hide things. If something bad happens, some wrong happens from your side also, you should have courage to admit it. How many times can wrong happen? One time? You should learn from that. So when somebody abuses you or something goes wrong with your mobile or somebody misuses you, please speak up. That is, you have got a chance. You can't live with the lie the whole life. So I would say to the students here, if some cyberbullying happens, please report it. We have cyber and economics and narcotics station, SEN station for that. We have local station for that. Please come, speak up. Unless you speak, nobody can help you. Neither principal can help you, teachers can help you, nor police can. How shall we come to know? We don't get Ashiravani that some boy and some lady in dental college has been abused. So please speak up, go to police station, ask for help. There are many things to control, prevent them. So be careful, and suicidal tendencies are more, as I said earlier. Please, as I said, you are all a resource. Don't die soon. See, everybody has to die, but taking your own life, it's very bad. You are important, your parents are important. See, everybody, when you die, everybody forgets you. Nobody will remember you. So, if you are there, that is important. You can give something to society. You are not born as a dog. You are born as a human being, and you should show that human being is capable of something.
Some people are remembered, some presidents are remembered. Why? Because they have done their jobs well. So please do your jobs well. Your job now is to be a student. Be a student. That's all. Nothing else around. Knowledge is important. Attitude is more important than that. So have those things in you. Empowerment happen with these things. Knowledge and attitude, and basically I would stress on action. Right action at the right time. And I thank Maratha Mandal College and the Human Rights Corps for giving me a privilege to speak here. Thank you one and all. Thank you students. Thank you all. Another is software student, and my number of students across the Karnataka and Maharashtra, in both the states I lectured, so my number of students are the super rankers. There is my slogan, nobody is dull and no subject is tough, but you have to follow some special techniques, tricks, methods and ideas. Please try to follow those all things. You are getting my many lectures through the YouTube channel, that is Ankush Durgi. It is working in 4 languages, Kannada, Marathi, Hindi and English. So you are getting many things there, especially study techniques are there. If you follow Ankush study method, you can overcome your all the difficulties in the student life. That gives you the perfect super mass. That is the Ankush study method. That is the study by practical system. You will not forget any things. Always you will remember lifelong. That is the Ankush study method. Many things are there. You can improve your handwriting within 10 minutes. Any language handwriting, any type of writing of the word. Again, many things are there. And again, by using the Vedic maths. It's an Indian traditional mathematics. It's a very superior one. It's a mother of universal knowledge. If you follow the Vedic maths, you can become a super student. Your brain will become a super active. There is special example of my family. In my family, everybody is super ranker. All are, because of Vedic maths. Yes. Also, I am following that modern maths also. So many things are there, and basic grammar, general grammar, spoken English, many things are there, and each and every things are useful for you. Better to follow. And here, now, I am very thankful to your Maratha Mandal unit, chairperson and principals and all the unit, teaching, non-teaching, and you the people, students. You have given the special platform here to express our voice against the drugs and raggings and social evils. These are the social evils. I know these things very well. As I entered the primary school, I had seen these all things. Many things are there. In my schooling life, I gone through these things. And in schooling also, in primary schooling, high school schooling, and we entered in colleges in the 80s. अच्छा, चलिए अब सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी मैंने बताया कि ये जो रैगिंग है, जैसे आया वैसे गया, अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ड्रग्स है ना, ऐसा इजीली ये जाने वाला नहीं है। इसके विरोध में हमको बहुत लड़ना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स लेने वाले किसी को बताते नहीं है कहाँ से मिलता है इनको, कहाँ से ये इनको सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है, कौन इनको सपोर्ट करता है, कैसे कैसे इन तक पहुँचता है, ये सब बहुत ही गुप्त रहते हैं। और बहुत दिनों तक कोई ड्रग्स ले रहा है ये भी मालूम नहीं होता। शुरू में ये ड्रग्स
लेते रहते कम प्रमाण में, बाद में ये बढ़ते बढ़ते उनका ड्रग्स सेवन करना, ड्रग्स लेना ये प्रमाण बढ़ता जाता है। और बहुत सालों बाद जब कोई व्यक्ति का मीन्स ड्रग्स लेने वाले का बहुत सारे एक्टिविटीज़ बदल जाते हैं, एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं रहते, उनका हेल्थ बिगड़ता है, उनके सब कुछ हर दिन के एक्टिविटीज़ बदल जाते हैं, तब जाकर कुछ कुछ डाउट्स होने लगता है, क्या ये स्टूडेंट या कोई और ये क्या ड्रग्स का सेवन करता है या ड्रग्स के चपेट में आ गया है। ऐसा हमको बहुत ही सालों बाद, दिनों बाद, बहुत ही एक लंबा पीरियड के बाद मालूम हो जाता है। तब तक ये कंप्लीटली ड्रग्स का एडिक्टेड हो गया होता है। तब इसको इस क्रूएल थिंग से, इस राक्षसी एक्टिविटी से बाहर इसको खींच कर लाना, बाहर इसको निकलना, बाहर इसको लेकर आना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर कोई भी रिलेशन या माँ बाप का या भाई बहन का या दोस्त का या और किसी का कोई भी प्रभाव न के बराबर होता है। कोई इसको ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे व्यक्ति को समझाने में इजीली सफल हो नहीं सकता। होंगे एक दो उदाहरण रहेंगे, किसी के एक दो शब्दों में, चार शब्दों में, एक चार दिन में या महीनों में कोई बदल जाएगा या ड्रग्स छोड़ देगा, ये बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल से कोई ना कोई एकाध व्यक्ति एक साहस करेगा, ये ड्रग्स के चंगुल से बाहर निकल कर आएगा। लेकिन ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जब तक किसी को मालूम हो जाएगा, किसी पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को और किसी को मालूम होने तक बहुत दिन या महीनों या साल बीत गए होते हैं। तब तक ये कंप्लीटली एडिक्ट हो गया होता है। तब इसका टोटल एक्टिविटीज, दिनचर्या बदल जाता है और उस एक्टिविटी से, उस ड्रग्स के एडिक्ट से बाहर इसको आना मुश्किल हो जाता है। उसको वही दुनिया ऐसा लगता है, इस दुनिया में और कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रग्स और बैड चीज़ों में ही उसको एक दुनिया, अच्छी दुनिया दिखाई देता है। जिसका हम बहुत ही क्रूएल मानते हैं, वो सब उसको अच्छे दिखाई देने लगते हैं। मैं खुद देखा हूँ, मेरे बहुत सारे जिनको मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूँ, बहुत से ऐसे मैंने रिश्तेदारों को देखा हूँ, इनकी ज़िंदगी लगभग बहुत ही खराब हो जाती है। हेल्थ बिगड़ता है, हेल्थ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने लायक कुछ नहीं बचता। फिर उसके साथ साथ इनके आचार विचार बदल जाते हैं, सोच में बहुत प्रॉब्लम आता है। उस चक्कर में से, उस चक्रव्यूह में से इनको बाहर आने में बहुत ही मुश्किल होता है।
ऐसे मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ये कैसे इनका एक्सप्लेन करूं। और तो मैं बहुत सारे ज्ञानी लोग, डॉक्टर्स लोग, बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जाम्पल देखा हूं, ड्रग्स के सेवन से और ड्रिंक्स के, हॉट ड्रिंक्स के कारण बहुत सारे यंगस्टर्स नपुंसक हो जाते हैं। या हमारे ग्रैंडफादर भी बताते थे, देखिए वो लोग टोटली किसी स्कूल में नहीं गए थे, टोटली अनएजुकेटेड थे, फिर भी वो हमारे ग्रैंडफादर और उनके फादर, ऐसे बहुत सारे हमारे लोग बताते थे कि जो भी एडिक्टेड होता है, बुरे एक्टिविटीज में फंस जाता है, या मीन्स ड्रग्स के चंगुल में फंस जाता है, ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नपुंसक होने का चांस रहता है। बहुत तकलीफ होता है ये सब सुन के। बहुत लोगों को ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। देखिए कितना एक अलग दुनिया होगा। हमारे लोग, हम सब मिलके इनको बचा नहीं सकते, इनको बाहर नहीं ला सकते। जैसे रैगिंग निकल गया, लेकिन ये ड्रग्स निकलने या बाहर जाने में बहुत मुश्किल है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं स्टडी के साथ साथ, लेक्चरिंग के साथ साथ, राइटिंग एंड पब्लिश के साथ साथ और यूट्यूब चैनल वीडियोस बनाने के साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे काम में मैं व्यस्त हूँ। और एक स्पेशल मेरा काम है मैरिज ब्यूरो। मैं मैरिज ब्यूरो चलाता हूँ। ऑल कास्ट के हजारों कपल के लिए मैंने मैरिजेस अरेंजमेंट करके दिया। उसमें लकीली बहुत कम कोई 2-4 हजारों में 1-2-4 मैरिजेस के, मीन्स मैरिड लाइफ में उन लोगों को, कपल में कुछ तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन हम सब मिल के सॉल्व कर लिया है। लेकिन समाज में मैं देख रहा हूं बहुत सारे यंगस्टर्स, और वह भी अच्छी तरीके से स्टडी किए हुए, हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, अच्छे पोस्ट में रहने वाले हमारे यंग इंडियंस 25, 30, 35, 40, 50 में ये अपने शरीर को लगभग खत्म किया है बिकॉज ऑफ ड्रग्स। देखिए हमारे समाज में कितना बुरा एक दौर चल रहा है, कितना बुरा समय चल रहा है। अब हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं हमारे समाज में। अभी हम चांद पर गए, बहुत सारे, कोई नहीं टच किया वैसे पॉइंट को टच किया। लेकिन ये तो बहुत एक अच्छा काम हो रहा है। इसके साथ साथ ये बुरे चक्कर में फंसे हुए बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं। मैं तो मानता हूं हमारे करोड़ों यंगस्टर्स, मीन्स जो 25 के है, 20 के है, जो 30 के है, 35 के है, या 40 के है, या और कोई ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स जो अच्छे पढ़ाई किए हुए हैं, एजुकेटेड है, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते, उनका सब इफेक्ट जानते हुए भी हमारे यंगस्टर्स इस ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं।
बहुत बहुत मुश्किल है, इसका हल निकालना बहुत मुश्किल है। क्या करें? बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे और भी सब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अभी कोई सीमा ही नहीं बच गया है। और एजुकेटेड भी है और नॉन मीडियम एजुकेटेड है और लोएस्ट एजुकेटेड है और इवन नॉन एजुकेटेड यंगस्टर्स इसके बहुत बढ़िया प्रमाण में शिकार हो रहे हैं। आपको कहना, आपको बताना मुझको मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है। किन के बारे में बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, क्या करेंगे इन सबको? देखिए, मैं तो खुद अभी 60 को आया, आज तक कभी चाह कॉफी भी नहीं मैं पीता। बहुत मुश्किल से यदि 4 लोग रहेंगे, किसी प्रोग्राम में रहेंगे, ना करने के बदले मैं थोड़ा सा चाय लेता हूँ, कॉफी लेता हूँ थोड़ा सा। जिंदगी भर मैंने माँ बाप को छोड़कर, घर को छोड़कर बाहर ही रहा हूँ एजुकेशन के लिए। मेरा एक छोटा सा गांव है, अथनी तालुका, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, सीना, कृष्णा नदी किनारे। कभी मेरे पेरेंट्स ने, भाई बहनों ने कभी मुझको नहीं पूछा कि क्या खाते हो, क्या पीते हो। कभी उन्होंने कभी प्रेशर, कोई कंडीशन नहीं डाला मुझ पर। फिर भी लगभग मैं 40 to 45 इयर्स लगभग मैं इयर्स बाहर ही रहा। ऐसा मत सोचिए मेरे पास पैसे नहीं आए इसीलिए मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया और कुछ नहीं। नॉर्मली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो जितने जिंदगी को चाहिए उतने, बहुत तो नहीं है लेकिन जितना चाहिए हमारे लाइफ लीड करने के लिए उतने तो है मेरे पास। लेकिन कभी कहाँ पर भी जाके कुछ नहीं अनवांटेड थिंग्स खाया या पिया नहीं। क्यों करना चाहिए ऐसे अनवांटेड थिंग्स लेके? क्यों अपना शरीर, अपना प्रकृति का एक जो अच्छा सा एक लेवल रहता है उसको क्यों गिराते हो? नहीं, मुझको तो लगता है हमको लगभग 100 साल तक हम इजीली जी सकते हैं। मेरे ग्रैंडफादर और बहुत सारे मेरे सीनियर्स कहते हैं, अरे आप यदि कोई भी हैबिट्स, बैड हैबिट्स नहीं किए, किसी भी हैबिट को आप एडिक्ट नहीं हो गया तो 100 साल से भी ज़्यादा आप बहुत अच्छी तरीके से लाइफ लीड कर सकते हैं। 100 साल से भी ज़्यादा हमारे घरों में है, अभी गाँव में है, आपके बहुत सारे रिश्तेदार रहेंगे, आपके घर में रहेंगे, बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं। हमारे भारत में तो बहुत सारे लोग हैं 100 साल तक इजीली लाइफ लीड कर रहे हैं। क्यों? ये लोग कोई भी ड्रग्स का सेवन नहीं करते, इवन चाह भी नहीं पीते। चाह, कॉफी और बहुत सारे ऐसे अनवांटेड थिंग्स वो कंटिन्यूअसली अवॉइड करते हैं। मैंने इन लोगों के बीच जी रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, आपके घरों में लोग रहेंगे ऐसे, लेकिन उनका एक ही मंत्र है, वो किसी भी ड्रग्स का सेवन नहीं करते। कोई भी अनवांटेड थिंग्स मीन्स स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स या हार्ड कुछ भी थिंग्स वो नहीं करते। लगभग सॉफ्ट ड्रिंक में ये लोग नहीं लेते, बहुत मुश्किल से लेते हैं। और खाना पीना, सोना, काम करना सब इनका सही ढंग में चलता रहता है।
आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ एंजॉय कीजिए। देखिए आप ये ड्रग्स के सेवन के बिना ये बहुत सारे थिंग्स के अनवांटेड थिंग्स के सेवन करने या और कोई इनके पीने खाने से बहुत बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी। इन सब को छोड़ के देखिए, आप मैरिड लाइफ तो बहुत एंजॉय कर सकते हैं। आज बहुत सारे इन ड्रग्स और बहुत सारे ऐसे अनवांटेड थिंग्स के कारण एक तो हमारा शक्ति कम होता है, हम शक्तिहीन हो जाते हैं, हेल्थ बिगड़ता है, सब कुछ हमारा शरीर ही बिगड़ने लगता है और कम समय में। मुझको बहुत दुख होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, जूनियर सीनियर, बहुत सारे ऐसे लोग इन सब ड्रग्स के कारण, इन सब बैड हैबिट्स के कारण बहुतों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की है। बहुतों ने बहुत दुख और दर्द सह रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है, क्या भाई, क्या थे आप, क्या बन गए, क्यों 30 में, 35 में, 40 में, लगभग इसी के आसपास ये सब अपना टोटल ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ दिए। उनको बच्चों का क्या होगा, उनका पत्नियों का क्या होगा, उनका भाई बहनों का क्या होगा, उनका माँ बाप का क्या होगा। ये बहुत मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। कृपया आप सब इन अनवांटेड थिंग्स के दूर रहिए और बहुत सारे लोगों को इससे दूर रहने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। और ऐसे कामों में जो हमारा मराठा मंडल एजुकेशनल ग्रुप, उसमें खास करके ये मराठा मंडल डेंटल कॉलेज बेलगाम, इन मराठा मंडल के चेयरपर्सन और मराठा मंडल डेंटल कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल रमाकांत नाइक सर और इनके असिस्टेंट्स, सब स्टूडेंट्स, टीचिंग नॉन टीचिंग ग्रुप, उसके साथ साथ हमारे ये कर्नाटका स्टेट, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल के सब हमारे ह्यूमन राइट्स के क्रॉप्स, हमारे जयश्री माड़गी जी मैडम और ये सुनील येड़ूरकर सर और हमारे रघु शिंदे सर और बहुत सारे हमारे ये जो ह्यूमन राइट्स के क्रॉप्स हैं, इन सब ने मिलकर हमारे मराठा मंडल के साथ साथ मिलकर ये जो अभियान इन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया अभियान है। इट्स अ वर्क ऑफ गॉड। ये बहुत बढ़िया काम है। प्लीज इन सब को सपोर्ट कीजिए। मैं तो सदा के लिए इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। इन्होंने कहाँ पर भी बुलाएंगे, कहीं भी बुलाएंगे, मैं किसी भी हालत में हूँ, फिर भी रहूँगा, फिर भी मैं उधर अटेंड करूँगा। जो भी मेरे अनुभव है उन सब के साथ मैं शेयर करूँगा। ये सब मिलके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सिर्फ स्टडी, सिर्फ जॉब और सिर्फ इनकम, सिर्फ पैसा, सिर्फ मजा और सिर्फ इधर उधर घूमना, ये प्योर जिंदगी नहीं हो सकता। इन सब के साथ साथ स्टडी कीजिए, घूमिए, इधर उधर जाके आइए, अपने अपने धर्मों का पालन कीजिए। बहुत सारे अपने जो भी ड्यूटीज रहेंगे ड्यूटीज कीजिए। इन सब करते करते थोड़ा सा वक्त निकाल के ऐसे सोशल वर्कर के साथ थोड़ा सा हाथ बिठाइए, थोड़ा सा मदद कीजिए। ये बहुत बढ़िया काम है। मैं तो इनके थैंक्स बोलने में मेरे पास कोई थैंक्स के लिए इनको
क्या कहो, किस शब्द में इनको सबको थैंक्स कहो, यही मुश्किल है। बहुत कोई थैंक्स के बगैर कुछ हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। हम सब मिलके इनको सपोर्ट करेंगे। और हमारे भारतवर्ष में जो यंगस्टर्स खत्म हो रहे हैं, जो पेरेंट्स को संभाल नहीं रहे, पेरेंट्स एज्ड पेरेंट्स उन बच्चों का संभाल करना पड़ रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये दुनिया उल्टी चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एडिक्टेड, अनवांटेड थिंग्स, ड्रग्स, ऐसे अनलिमिटेड थिंग्स हमारे समाज में चल रहे हैं। इनका हम जोरों से इनको टोटली हम विरोध करना चाहिए, इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। अच्छा, इन सबको थैंक यू। So, just I will take 2 minutes. So I will share my experience in APMC police station. So I will tell practical problems what happens if you involved in drugs cases. So and also ragging cases. Recently in our KLE JNMC college, 3 students involved in ragging. जो क्या हो गया था, वो स्टूडेंट को रैगिंग किया था। बाद में वो थोड़ा सेंसिटिव था स्टूडेंट। वो क्या किया, ऑनलाइन अभी साइबर क्राइम पोर्टल से हमारा कर्नाटका स्टेट पुलिस का केएसपी का पोर्टल पे है। कुछ भी अगर रैगिंग हो गई तो यू कैन इमीडिएटली पोस्ट योर प्रॉब्लम्स एंड देयर इज नो नीड टू टेल योर नेम्स एंड डिटेल्स एज वेल। सो इमीडिएट हर कॉलेज में वो एंटी रैगिंग कमिटी रहता है, प्रिंसिपल्स रहते हैं, लेक्चर्स रहता है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सीपीआई सर का नंबर भी रहता है, नहीं तो हमारा नंबर रहता है। कभी कभी ऐसा रैगिंग रिपोर्ट हो गई तो हम इमीडिएट चाहते हैं। एक्चुअली वो इंसिडेंट ट्विटर पे किया था, बाद में वो हमारे पुलिस स्टेशन को आ गया। बाद में हम इंक्वायरी स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में वो स्टूडेंट मेंशन किया था कौन कौन रैगिंग किया। आपको मेडिकल एम्बुलेंस का हेल्प चाहिए तो भी वही नंबर पर फोन कर सकते हैं। पुलिस, फायर, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो इमीडिएट 11 को आप कॉल किया तो हमारा एक 24/7 पुलिस व्हीकल रहता है, स्टाफ रहता है, इमीडिएटली आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो मैं ये 3 साल से एक अच्छा चीज़ क्या है, ये इधर मेडिकल डेंटल कॉलेज में एक भी केस रैगिंग और ड्रग्स का केस नहीं है, ये अच्छा है। सो आप लोग अच्छा काम करो, अच्छे से करो। और एक पहले क्या होता था, पुलिस बोले तो पॉलिटिशियन को आने के लिए स्टूडेंट्स लोग डरते थे। सो अभी हमारा हम भी अभी पीपल फ्रेंडली हो रहे। सो आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो फोन करो, नहीं तो स्टेशन नज़दीक है, 24/7 आप आके तुम्हारा बोलना चाहिए। इतना आपका डिटेल्स भी हम कहाँ भी नहीं लेते। सो कुछ भी प्रॉब्लम तो इमीडिएट 24/7 आप आ जाए। हमारा जो हमारे से हेल्प होता है ना, वी आर रेडी टू हेल्प। Thank you. And traffic, Mrs. Sneha, then PSI of APMC Police Station, Mr. Manjunath Bhajantri, our guest speaker for the day, Professor Avinash Durge, our State President of Human Rights Corps, Mr. Neeraj Banaskar, Jai Shri Malgi, State President, Director of Women's Wing, all the dignitaries who are here, Mr. Satish Malode, who has been very proactive with us. We had tremendous 60 medicinal varieties of trees, okay, which is a novel thing for any dental college in the country. We have a fantastic central research laboratory where we are doing novel drug discoveries, okay, and we are applying these novel formulations for treatment of various oral diseases. Now, Mr. Durge, Professor Durge, when he was addressing, he talked about his YouTube channel, which you all can definitely subscribe, the Avinash study model, okay? Ankush study model.
Regarding the marriage bureau, there's still some time for you to subscribe to that, okay? So you might do that later after a few years of graduation, okay? But his study model you can definitely visit, you can subscribe, try to learn from that. And he, apart from this, he also addressed about tobacco abuse, and he was talking about his juniors and maybe his friend circles, people who abuse tobacco. Let me inform Professor Ankush that we have a very active tobacco cessation cell at our institute with Dr. Sujata Bhatti as the in charge, where we actively involve in taking people out of these habits. So all the dabangs that you know, you can please refer them to our institute for this tobacco cessation protocol, and we will definitely enroll them in that. Thank you, sir. Okay? And we thank all the dignitaries for being with us and for the audience for a very patient hearing. Thank you very much. Have a great day.